Hello. So today we will talk little more about interview. You see, interview is a important thing. Why it is important? Because generally the perception is there that the interviewing officer gives better marks as compared to psych. So if your interview goes well, then you can expect a better evaluation, better number of marks that are allotted, which will take you higher in merit. So do not take interview lightly. And as I have told you, there are limited questions. Almost all the questions I have put in my videos. Prepare, only thing is there can be some more GK and current affair questions, as I have told you that in your interview, your lecturate and group discussion topics of current affairs also can be asked, will be asked as questions. And then there will be some branch questions, and questions will be made from your answers. In whatever direction you are taking him, whatever answer you are giving, from that area more questions will be framed and asked. So अभी in today's video we will talk about top 5 mistakes that we make. One by one we will talk about them so that there is clarity in your mind कि करना क्या है और क्या नहीं करना है. तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इज द फर्स्ट इम्प्रेशन दैट यू मेक ऑन द साइट. हम यहाँ पर गलती कर देते हैं. एक तो वी डू नॉट केयर मच अबाउट द ड्रेस. ये ड्रेस आप पहले से प्रिपेयर करके लेके जाओ. योर फॉर्मल ड्रेस फॉर बॉयज़, टाई, लाइट कलर शर्ट एंड डार्क कलर ट्राउजर्स एंड लेदर शूज, प्रॉपर हेयर कट, और चेहरे से नर्वसनेस नहीं दिखनी चाहिए. कॉन्फिडेंस, एक माइल्ड स्माइल, ये दिखना चाहिए एज यू एंटर. एंड योर विशिंग शुड बी वार्म. तो अगर ड्रेस इनअप्रोप्रिएट है गर्ल्स के लिए, दे कैन बी wearing pant shirts or they can be wearing salwar suit or sari, whatever you want, but it should be a formal dress of a decent sober color. It should not be very bright or jewelry या बहुत strong perfume. ये सब चीज़ें you should avoid. So dressing inappropriately is number one. I'll not go into details. You all know. When you enter, you must wish him very nicely, and it should appear that you are smart, you are interested, you are not under tension or worry by the way you wish him and by the way you make an entry. डरा डरा सा मत रहना. डरने से क्या हो जाएगा? डरोगे तो रिकमेंड नहीं कर देगा, और नहीं डरोगे तभी भी रिकमेंड ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा कि ये डर नहीं रहा है. So don't be under tension, or don't show that panic type of thing. Second point is being unprepared. That is a very serious point. आप जा रहे हो तैयारी करके नहीं जा रहे हो. First question he asks, you say sorry sir. First level पे you are saying sorry. You see, with the IU also, the grading, the difficulty of questions will increase one by one. He asks a particular question, you answer, then he will ask you a deeper question. Okay, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप. रशिया यूक्रेन वॉर का एग्जाम्पल ले लो करंट अफेयर्स में. टेल मी समथिंग अबाउट रशिया यूक्रेन वॉर. सॉरी सर, आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट एक्चुअली. तो पहले पे आप गिर गए, फर्स्ट बॉल पे आउट. तो यू आंसर दिस रशिया यूक्रेन वॉर. देन ही में आंसर के व्हाट लेड टू रशिया यूक्रेन वॉर. यू आंसर दैट. देन ही में आस्क अनदर क्वेश्चन, टेल मी अबाउट द नेटो एंड व्हाट लिंक नेटो हैज गॉट विद रशिया यूक्रेन वॉर. व्हाई रशिया इज सो एंशियस टू एनेक्स यूक्रेन. अब प्रॉब्लम सॉल्विंग डीप एनालिसिस में ही इज एंटरिंग. उसके बाद में ही मैं आस्क यू व्हाट इज योर सॉल्यूशन फॉर रशिया यूक्रेन वॉर. प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछ रहा है.
तो आप फर्स्ट पे ही आपने कह दिया कि सर आई नो देयर इज वॉर इज गोइंग ऑन, तो बट आई एम नॉट वेरी क्लियर सर व्हाट आर द कॉजेज। ये चीज़ ध्यान रखो, बीइंग अनप्रिपेयर्ड इज अनपार्डनेबल, तो यू हैव टू प्रिपेयर वेल। क्वेश्चन सारे मैंने डाले हुए हैं, खूब बार बार रिपीट करो, प्रैक्टिस करो उनको, और अपने अपने एरिया के लाइक एनडीए वाले हैं, एफकेट वाले हैं, वो भी डाले हुए हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो और उनसे सिमिलर क्वेश्चंस। देन गेम्स एंड हॉबीज पे आपके क्वेश्चंस हैं, वो भी मैंने डाले हुए हैं। इंटरव्यू में तो बहुत सारी स्लाइड्स वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, और अगर और भी कोई किसी एरिया में यू वांट लेट मी नो, आई विल प्रिपेयर ए वीडियो एंड आई विल पोस्ट इट ऑल दोस क्वेश्चंस, काफ़ी डाले हुए हैं। अब थर्ड पॉइंट इज टॉकिंग टू मच और टू लेस, नॉट इनफ। अब उसने क्वेश्चन पूछा और आप चालू हो गए, नाउ यू आर नॉट स्टॉपिंग। मैंने वीडियो में भी, पहली वीडियो में भी बताया है कि योर आंसर शुड बी अबाउट 1 or 2 सेंटेंसेस फॉर ए शॉर्ट क्वेश्चन और 5-6 सेंटेंसेस फॉर ए मीडियम क्वेश्चन, और किसी में डिटेल्ड एनालिसिस करके अगर पूछा है तो उसमें थोड़ा सा आप अबाउट 8 to 10 सेंटेंसेस भी बोल दो। लेकिन आप देखोगे और उसके एक्सप्रेशन देखोगे, ही वॉन्ट्स टू लिसन मोर, और एक्सप्रेशन से वो लग रहा है कि अभी ही गोइंग टू आस्क अनदर क्वेश्चन। तो जितना आपको उसके एक्सप्रेशन देख के समझ में आए उतना आप लेंथ उसकी एडजस्ट करो। नाइदर इट विल बी टू शॉर्ट लाइक टेल मी अबाउट रशिया यूक्रेन वॉर, सर दे आर ऑन वॉर सिंस February 2022। ही एक्सपेक्ट्स ए मोर डिटेल्ड आंसर। तो ये आपको जज करना है, यहाँ पर ये बताया नहीं जा सकता कि किस क्वेश्चन का कितना बड़ा आंसर देना। दिस विल कम बाय प्रैक्टिस एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि हाउ मच यू कैन टेल। अब टेल मी अबाउट रशिया यूक्रेन वॉर, नॉन स्टॉप आप चालू हो गए, 15 मिनट तक आप यही बोले जा रहे हो। तो बैलेंस इसमें रखना है, कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है। अब कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज आस्किंग ए क्वेश्चन एंड यू आर इंटरप्टिंग इन बिटवीन, दैट इज नॉट टू बी डन। ओके, फर्स्ट लिसन केयरफुली, लेट हिम कंप्लीट द सेंटेंस and then you start answering. Take a few seconds pause after he finishes his question and before you start the answer. Take a few seconds pause. You can count up to 5 in your mind and then speak. ये तो मैं वैसे बोल रहा हूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कितना पॉज आपको लेना चाहिए। घर में प्रैक्टिस करके जाना कितना पॉज एडिक्वेट है, उसके बाद फिर आप बोलो। ओके, अब now you are answering the question and he starts asking another question. You stop immediately. Don't run a parallel train. He is asking question and you are answering the previous one. ये गलती कई बार होती है, ओवरलैपिंग की गलती होती है। कई कैंडिडेट मुझसे कमेंट्स में भी पूछा है कि सर चेन क्वेश्चंस पूछने के बाद में कैन आई आस्क हिम कि सर हैव आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन? नो, एब्सोल्युटली नो। दिस इज योर जॉब टू रिमेंबर व्हाट क्वेश्चंस ही हैज आस्क्ड एंड हैव यू आंसर्ड ऑल और नॉट। ओके, तो ये इस तरीके की गलती आप मत करना कि इंटरव्यू के बीच में आप उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर दोगे। सर हैव आई आंसर्ड ऑल, सर इज इट ओके, द आंसर इज एक्सेप्टेबल। इस तरीके की बातें आपको नहीं करनी है। सर हैव आई मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग, ये ज़्यादातर कैंडिडेट पूछ लेते हैं CIQ में, सर हैव आई मिस्ड आउट ऑन समथिंग। ये गलत है, ये इस तरह से आप मत पूछिए। जो आपने आंसर कर दिया दैट्स ऑल। ही मे हिमसेल्फ टेल यू कि यू हैव मिस्ड आउट ऑन फ्यू क्वेश्चंस, सो देन यू डोंट से कि सर कैन यू प्लीज रिपीट देम। आप रिकॉल करो कि what you have missed out. Otherwise, if it is an important question that you have missed out, he may ask you again. But you don't ask him, sir please, can you please repeat your question. कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन पूछता है, not only CIQ, GK का कोई क्वेश्चन पूछता है, you are not attentive or you are lost in some dreams at that time, nervous, then you ask, sir can you please repeat your question. ये इस बात को एज फार एज पॉसिबल मैं कह रहा हूँ कि डोंट आस्क हिम। अगर बहुत ही मजबूरी आपको लगे
कि आप नहीं सुन पाए या कोई बात हो गई तो वेरी पोलाइटली एंड रिग्रेटिंग टोन में कि सॉरी सर, आई कुडंट गेट द क्वेश्चन करेक्टली, सर कुड यू प्लीज रिपीट इट, बहुत पोलाइट माइल्ड टोन में, बट देन इट शुड नॉट बी ए रूल। पूरे इंटरव्यू में शायद एक बार आप एक्सेप्शन इसका कर सकते हो, अदरवाइज डोंट आस्क हिम टू रिपीट हिज क्वेश्चन। दिस शोज योर वीकनेस, योर बीइंग इनअटेंटिव एंड नॉट बीइंग अलर्ट। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपेंस, ही आस्क्स ए क्वेश्चन, आपको समझ भी आ गया लेकिन आप इंटरव्यू में थोड़ा सा नर्वस हो और आपको आंसर पता है लेकिन उस समय नहीं आप रिकॉल कर पा रहे हो, तो एट दैट टाइम यू कैन आस्क हिम, सर कैन आई टेक ए फ्यू सेकेंड्स टू रिकॉल, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। ये बात आप कह सकते हो। अब फिर वही बात है कि नॉट एवरी टाइम, वंस इन द इंटरव्यू अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप कह सकते हो, सर कैन आई टेक फ्यू सेकेंड्स टू रिकॉल, ही विल से ओके टेक इट। आप रिकॉल कर लो क्या है क्वेश्चन, क्या इसके मुझे फैक्ट्स बताने हैं, क्या डेटा बताना है, और आप उसके बाद में आंसर कर दो। बिफोर आंसरिंग यू शुड ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, बोलना क्या है मुझे, कौन कौन से पॉइंट्स बोलने हैं, कितना बोलना है। अब जो नेक्स्ट गलती होती है, और ये इंटरव्यू अफसर आपसे पूछते हैं, मार्क्स कम आए, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज द रीजन, व्हाई, यू स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स, फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स। प्रीवियस, व्हाई आर यू लीविंग दिस जॉब, योर करंट जॉब। तो गलती से भी आप किसी को क्रिटिसाइज मत करिए, किसी को ब्लेम मत करिए, फॉल्ट फाइंडिंग मत करिए। Sir, actually working hours are not very convenient. Sir, there is too much of workload. Sir, the boss is not good. Sir, their expectations are very high. Salary is very low. ये सब क्रिटिसिज्म है, फाइंडिंग फॉल्ट है, कंप्लेनिंग है, रोने वाली जो आदत है, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। आज आप वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रो रहे हो या उस स्कूल, उस टीचर के लिए रो रहे हो, कल यही ट्रेंड आप इस ऑर्गेनाइजेशन में भी लेकर आओगे। यू विल बी ऑलवेज कंप्लेनिंग, यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड, यू विल बी फाइंडिंग फॉल्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन। आपको इतना सारा अच्छा नहीं दिख रहा है और कमियां ढूंढ रहे हो, और वो प्रमोट करता है इस बात को। IU will promote, he actually wants to ascertain, want to be really sure कि ये दबी हुई चीज आप मास्किंग तो नहीं कर रहे हो, कि यू आर शोइंग ऑफ कि नहीं सर एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। ही विल आस्क यू प्रोबिंग क्वेश्चंस, फर्दर क्वेश्चंस ऑन दिस। तो ये भी चीज आपको फॉल्ट फाइंडिंग वाली आदत चेंज करनी है। और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप डे टू डे लाइफ में भी तो इनको आप अप्लाई करिए। इट इज़ नॉट दैट कि वो 1 आवर इंटरव्यू के लिए ओनली यू आर प्रिपेयरिंग एंड मास्किंग योर सेल्फ, मैं तो ऐसे बोल दूंगा, वैसे बोल दूंगा। ये रियल लाइफ में आप अपनी हैबिट बनाओ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मिस्टेक क्या है आपकी, फेलिंग टू गिव सजेशंस और आस्किंग क्वेश्चंस। ये आप मान के चलो, नहीं पूछा तो अलग बात है, ये आप मान के चलो कि वो आपको पूछेगा गिव मी सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, किसी भी चीज़ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्कूल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, कैंडिडेट मैच के लिए, जो खाना वहाँ पर खाया उसके लिए, इंटरव्यू ऑफिसर के ऑफिस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, इन योर सिटी, इन योर टाउन, इन द कंट्री, व्हाट इम्प्रूवमेंट्स कैन बी ब्रॉट अबाउट। तो ये माइंड में आप सोच के जाइए। सजेशंस आप पहले ये कह सकते हो कि सर इट्स वेरी गुड, एवरीथिंग इज वेरी नाइस, इट्स परफेक्ट। देन ही मे अगेन आस्क यू कि नो देयर आर ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, गिव मी सजेशन। एट दैट टाइम अब आप इंसिस्ट मत करते रहिए कि नहीं सर अभी कुछ अच्छा है, नहीं सर कोई सजेशन नहीं है। एक बार आपने बोल दिया सर एवरीथिंग इज वेरी गुड, आई डोंट थिंक एनी इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड, people are very caring and very nicely they have looked after us, the atmosphere inside this selection board is very good, sir the country is progressing,
जो भी आपको बोलना है तो आप कहिए सर सजेशंस की मुझे लग नहीं रहा, वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, एवरीथिंग इज फाइन एंड परफेक्ट। अब जब सेकंड टाइम वो इंसिस्ट करता है तो आप सजेशंस पहले से इन सब के बारे में सोच के जाइए। 3 नहीं हो तो 1 या 2 सजेशन तो आप हर चीज़ के बारे में सोच के तैयार करके लेके जाइए, ठीक है। अब जैसे मैं अपने कैंडिडेट्स को बताता हूँ, कैंडिडेट मैथ्स में क्या सजेशन, तो कुछ एडिशन की बात करो आप, ठीक है। स्कूल में क्या सजेशन कि क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, सर फुटबॉल ग्राउंड है तो बास्केटबॉल नहीं है, बास्केटबॉल भी हो जाए। एडिशन की बात करो आप, कंप्लेनिंग की बात मत करो कि दैट विल बी गुड सर, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स हु प्ले बास्केटबॉल। सेम वे कैंडिडेट में इसमें वॉलीबॉल का कोर्ट होगा, टेबल टेनिस होगी, तो यू कैन गिव दिस सजेशन। सजेशन एक एडिशन के लिए, आप बेटरमेंट के लिए आप बात करो, द स्कोप फॉर बेटरमेंट इज ऑलवेज देयर। अब सजेशन में आप ये नहीं कहोगे कि सर वो जो वॉलीबॉल दी थी सर वो तो बिल्कुल घिसी हुई पुरानी है, हवा नहीं है सर उसमें, तो नेट फटा हुआ है सर, होगा भी नहीं। लेकिन इस तरीके के सजेशन जहाँ ब्लेम या क्रिटिसिज्म या कमियां वाले बात सजेशन है वो नहीं देने हैं आपको। इस तरीके से पेरेंट्स के अंदर क्या सजेशंस, क्या इम्प्रूवमेंट्स, फ्रेंड्स में सब आप क्वेश्चन नोन, दे आर नोन क्वेश्चन, प्रिपेयर करके जाओ इसमें। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि he may ask you okay, I have asked you so many questions, now you ask me some questions, whatever you want. अब you are not prepared and you say no sir, no sir, no question sir, no question. Sometimes he may say okay, but there are some interviewing officers who will insist no, you have to ask me a question. तो भाई पहले से प्रिपेयर करके लेकर जाओ ना। आप पहली बार तो आप बोलोगे नो सर, इट्स ऑल राइट, एवरीथिंग इज फाइन, पहली बार आपने कहा कि सर इट्स गुड। लेकिन अगर आप कुछ पूछ ही नहीं पा रहे हो तो इट मीन्स आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या तो फिर बहुत ज़्यादा जानते हो और या कुछ भी नहीं जानते हो। आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन क्या पूछना है मुझे, मैं क्या जानकारी मैं चाहता हूँ। क्यूरोसिटी होती है, यू डू नॉट नो एवरीथिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यू डोंट स्टार्ट टेस्टिंग हिज नॉलेज कि सर ये रशिया यूक्रेन वॉर के बताओ सर अमेरिका का रोल, कैन यू टेल मी व्हाट इज अमेरिका रोल इन रशिया यूक्रेन वॉर। यू डोंट स्टार्ट टेस्टिंग हिज नॉलेज। आप क्वेश्चन अपनी क्यूरोसिटी का उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकते हो। उसमें आप ढूंढ लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन भी ना हो जो कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट या कोई इस तरीके का चीज़ है, या आपको नहीं पूछनी चाहिए सर आपकी सैलरी कितनी है। तो इस तरीके के पर्सनल नेचर के क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। उसकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, सर आपको नेक्स्ट प्रमोशन कब मिलेगा, तो ये सब पर्सनल कैटेगरी में आ गए, ठीक है। आप जनरल एयरफोर्स के या आर्मी या नेवी जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो या कोस्ट गार्ड, उसके बारे में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, चाहो तो आप ये क्वेश्चन ही प्रिपेयर करके जा सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, और यू कैन थिंक ऑफ योर ओन क्वेश्चंस। नाउ the question that you should ask, suggested question, sir what changes do we foresee in Air Force, Navy or Army, or in general you can say in defense services, sir what changes do we foresee in the defense services in the near future, like more use of artificial intelligence and robotics and technology and reduction on human डिपेंडेंस। तो ये तो चल रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, मैन पावर रिडक्शन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हो, दिस इज ए नॉर्मल क्यूरियोसिटी, कि क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्यूचर वॉर्स, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि फ्यूचर वॉर्स विल बी फॉट ऑन टेक्नोलॉजी, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। तो आप यहाँ बैठे हो, यहाँ से आपने बटन प्रेस करा और फायर हो गया, फेस टू फेस वॉर की शायद रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाए आगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन फ्यूचर के बारे में जो आपने सुना है वो आप उनसे पूछ सकते हो, एंड आई थिंक ही विल बी हैप्पी टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन।
और इतना मुश्किल भी नहीं है कि आईओ को आता ना हो ये क्वेश्चन का आंसर। आपने इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि ना हो आईओ इधर उधर देख रहा है, यार इसका क्या मैं जवाब दूँ। जस्ट जोकिंग। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क हिम, और यू कैन प्रिपेयर योर ओन क्वेश्चन, बट डोंट गो अनप्रिपेयर्ड। जो मैंने शुरू में बात कही ना, डोंट गो अनप्रिपेयर्ड। अब ये तो मिस्टेक्स हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि व्हाट यू शुड डू। ऑब्जर्व द बेसिक्स। बेसिक्स क्या होते हैं कि यू हैव टू बी नाइस, जेंटल, रेस्पेक्टफुल, काइंड टू ऑल द पीपल हुम यू मीट। अगर वहाँ पर आपका कुक भी है या वेटर भी है तो उसके साथ भी आप रेस्पेक्टफुली बात करोगे। ये आपके मैनर्स और एटिकेट्स हैं, बेसिक आपके अपब्रिंगिंग है, ठीक है। आप खाना ले रहे हो तो ये नहीं है कि उसमें से सारा आप अपने उसमें ही भर लो। ये सब बेसिक्स हैं, बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हो। तो बेसिक्स को आप ऑब्जर्व करो। आप बैठे हुए वहाँ पर, वेटिंग अभी चल रही है, दूसरा कैंडिडेट अंदर इंटरव्यू दे रहा है, आप बैठे हुए हो, आप स्ट्रेच कर रहे हो वहाँ पर, क्या यार। तो ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं, बेसिक मैनर्स हैं, मैनर्स एंड एटिकेट्स। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ गुड मैनर्स। तो गुड मैनर्स आप दिखाइए, अपने सबके साथ दिखाइए। ये नहीं कि ये तो यार स्वीपर है, ये तो चपरासी है। हर एक के साथ बी रेस्पेक्टफुल एंड पोलाइट, बी नाइस एंड रेस्पेक्टफुल एंड पोलाइट टू एवरीवन। अब इंटरव्यू के साथ में, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ में, यू शुड मेक एन आई कांटेक्ट। ये घर में आप प्रैक्टिस कर लो, मिरर में अपनी आईज में आप देखो और बात करो, क्वेश्चन के आंसर दो, अपनी आईज में देख के क्वेश्चन के आंसर दो। यू विल बी एबल टू, यू विल नॉट गेट स्केयर्ड और अनकंफर्टेबल एट दैट टाइम। तो आँख से आँख मिला के देना है, लेकिन घूरना नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टेयर लाइक दिस। एक जेंटल सा गेज आपकी, और अगर बहुत ही अनकंफर्टेबल आपको लग रहा है आँख में आँख, हाल तो प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तो यू कैन लुक हेयर। तो जो आँख से मिलाने का अगर डर आपके अंदर है तो यू कैन लुक हेयर एट द फोरहेड। और फाइनल थिंग इज स्टे चीयरफुल एंड एंथुजियास्टिक थ्रू आउट द इंटरव्यू। डरना नहीं है, डर के, घबरा के, नर्वस होके अपना नुकसान कर लोगे। इसलिए कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, अंतर समझो। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, एंड डू नॉट शो योर एरोगेंस दैट यू नो टू मच। Be polite, humble and gentle, and wish you all the very best. Ask your questions in the comment box.